नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मानसा जिला के कस्बा झुनीर में पीआरटीसी की बस ने स्कूटी सवार दो सगी बहनों को कुचला, मौके पर हुई मौत। अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ ट्रेन में पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर लगी भीषण आग, 125 यात्रियों को सुरक्षित निकाला बाहर। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू इलाके में पुलिस और लुटेरे में हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी हुआ घायल। और अब हलचल विस्तार से। मानसा जिला के कस्बा झुनीर में शनिवार की सुबह पीआरटीसी की बस द्वारा एक स्कूटी चालक को टक्कर मारने के बाद दो सगी बहनों की बस के नीचे कुचले जाने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में स्कूटी चालक पिता और स्कूटी पर सवार एक बच्चा बाल बाल बच गया। घटना की सूचना मिलते ही झुनीर पुलिस ने दोनों लाशों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल सरदूलगढ़ भेजने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के समय बस लुधियाना से सिरसा की ओर जा रही थी। जानकारी देते हुए ललिया वाली ढाणी वासी संदीप राम और मेवाराम ने बताया कि सुबह के समय शिंदर राम स्कूटी पर अपनी बेटी सोनू 12 वर्ष और मीणा कौर 8 वर्ष के अलावा जस्सी राम को स्कूल छोड़ने के लिए गया था कि मेन रोड पर अचानक रास्ते में पीछे से आ रही बस द्वारा स्कूटी को टक्कर मार दी गई, जिसमें सोनू कौर और मीना कौर की बस के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में बच्चा जस्सी और स्कूटी चालक शिंदर राम घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों द्वारा सिविल अस्पताल सरदूलगढ़ पहुंचाया गया। मृतक सोनू कौर 7वीं कक्षा और मीना कौर 3री कक्षा की छात्रा थी। थाना झुनीर इंचार्ज लखविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने पीआरटीसी की बस को कब्जे में लेकर चालक गांव उम्भा निवासी रंजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। स्कूल च जा रहे सी बच्चे चक्क बस इन्हां ने मगरों आके बस मारती, पर चक्कन दा हक बनदा सी, रोकना सी। दूजे मुंडे ने आके बस रोकी, फिर रोक के चक्या। अच्छा, हाँ किवें देखदे हो माता, की कहना चाहोगे ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਐ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਿਆ। ਦੋ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੜਾਉਣੇ ਪੈਣੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪੜਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੜਕੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕੂਲ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਿੱਟੀ ਬੱਡੀ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਮਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਤੜਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੀਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਆ ਨਾ ਕੱਚਾ ਜੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਸ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਮਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਰੀਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਬਸ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਨ ਦਾ ਬਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਾਰੂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਮਾਨੇ ਐਸਆਈ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਝਨੀਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਵੀ ਝਨੀਰ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਪਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਹ ਜੋ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈਗੀ। ਬੱਸ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਬੱਸ ਵੱਜੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੀ भी कार्रवाई की जा रही है। ट्रेन के 3 जनरल एसी कोच आग की चपेट में आ गए, जिनमें 125 यात्री सवार थे। हादसा सरहिंद जंक्शन के आउटर में हुआ। हादसे में बिहार की रहने वाली जीरा देवी गंभीर रूप से झुलस गई। ट्रेन सुबह 7:22 पर सरहिंद रेलवे जंक्शन से क्रॉस हो रही थी, जिस समय उसके कोच संख्या 19 से धुआं निकलता देखा गया, जिसके बाद तुरंत ट्रेन को सरहिंद जंक्शन के आउटर पर ब्राह्मण माजरा फ्लाईओवर के नीचे रोक दिया गया। तब तक कोच संख्या 19 में लगी आग से कोच नंबर 18 और 20 भी आंशिक रूप से चपेट में आ गए थे। ट्रेन रोकने के बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सरहिंद फायर ब्रिगेड को आग की सूचना 7:36 पर मिली और 2 गाड़ियों को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया और मंडी गोविंदगढ़ से एक फायर ब्रिगेड वाहन मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने करीब 3.5 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया। ट्रेन में दिवाली और छठ पूजा के लिए बिहार में अपने घर जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक थी। ट्रेन में आग की सूचना मिलते ही अंबाला डिवीजन के डीआरएम विनोद भाटिया मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग की चपेट में आई 3 कोच और जनरेटर कार को अलग कर ट्रेन को सरहिंद से रवाना किया गया। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 1/2204 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੂ ਸਹਾਰਸਾ ਗਰੀਬ ਰੱਥ ਇਹ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੀ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਸ਼ਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਕਿਆ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਹਾਰਸਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਹੈਗਾ ਡੈਮੇਜ ਉਹ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਲकुल ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान डकैती के एक मामले का एक आरोपी घायल हो गया। सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपी कुछ दिन पहले रंजीत एवेन्यू के सी ब्लॉक स्थित एक घर में इन्फोर्समेंट एजेंसी के अधिकारी बनकर लूट की वारदात कर फरार हो गए। आरोपी विक्रमजीत उर्फ विक्रम के साथ पुलिस मुठभेड़ उस समय हुई जब वह पुलिस पार्टी को अपने साथियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक स्थान पर ले गया। इस बीच विक्रम ने मौके का फायदा उठाकर गोली चला दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस कमिश्नर भुल्लर ने बताया कि आरोपी पर पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले शामिल हैं। पुलिस ने विक्रम के 3 साथियों मनदीप, जितेंद्र सीनू और अन्य साथी की पहचान की है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। पुलिस कमिश्नर भुल्लर ने कहा कि पंजाब पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कोई भी अपराधी चाहे वह किसी दूसरे राज्य में छिपा हो, कानून के दायरे में लाया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों से 3 हथियार बरामद किए हैं और लूट के अन्य मामलों की जांच जारी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ 5-6 ਲੋਕ ਵੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 3 ਵੈਪਨ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿੱਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਨਾਨਕਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲ ਹੈ, +2 ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ 'ਚ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ SOC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਬੜਾ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1 ਪਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਮੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 8 ਪਰਚੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 7 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਮੁਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ASI IO ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸੜਕ ਵੱਲ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਸਟਲ ਜਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਨੈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਤ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਸ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਰਤ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਔਰ ਵਧੀਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਔਰ 3 ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਰੀਏ 'ਚ ਟਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ जाके अरेस्ट हुए। धनतेरस के शुभ अवसर पर शनिवार को प्रसिद्ध फिल्म मेकर करण जौहर के लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड टयानी ज्वेलरी के नए शोरूम का भव्य उद्घाटन जालंधर में किया गया। तो वहीं ये आयोजन सेंट्रल ARC बिल्डिंग न्यू वेस्ट साइड ग्राउंड फ्लोर जवाहर नगर में आयोजित हुआ। इस उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि मिस वर्ल्ड सिनी शेट्टी रही। उन्होंने रिबन काटकर शोरूम का शुभारंभ किया। सिनी ने इस मौके पर कहा कि मुझे खुशी है कि मैं इस शानदार ब्रांड के नए अध्याय की शुरुआत का हिस्सा बनी। टयानी ज्वेलरी भारतीय शिल्पकला और आधुनिक फैशन का बेहतरीन संगम है जो हर महिला की सुंदरता को और निखारता है। वहीं ब्रांड से जुड़ी ऑनर पूनम कालरा ने बताया कि अब जालंधर के ग्राहक टयानी ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव डिज़ाइन और पोल्की कलेक्शन का आनंद अपने शहर में ही उठा सकेंगी। गौरतलब रहे कि टयानी ज्वेलरी करण जौहर का लग्जरी ब्रांड है जो पारंपरिक पोल्की और अनकट डायमंड ज्वेलरी को आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत करता है। इस अवसर पर भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष अमरजीत सिंह सहित शहर के कई प्रतिष्ठित लोग भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। Hi, this is Tamanna from Tyani team. Firstly, wishing everybody a very auspicious, very prosperous Dhanteras. Not a better day to start a 10th store in India. Hand over to Mrs. Poonam Kalra from our Jalandhar team. Thank you, Tamanna.
We are very happy and excited to announce that Tyani Jewelry, a brand of Karan Johar, is now open in Jalandhar, and not a better day to open it. We would like all of you to come and enjoy the magic of Tyani. Thank you so much. इसमें हमारे पोल्की, अनकट, कुंदन, जड़ाऊ एंड लिटिल डायमंड ऑल्सो विल बी देयर. ये सेंट्रल आर्क एक नई बिल्डिंग बनी है अमरदास चौक पे, वहाँ पे हमने इसको ग्राउंड फ्लोर पे त्यानी ज्वेलरी खोला है, ब्रांड ऑफ करण जौहर. ये करण जौहर जी का ब्रांड है इन बॉम्बे, and we are very proud that we are now associated with this brand. और इसको हम पहला स्टोर है पूरे पंजाब में जो हम खोल रहे हैं यहाँ जलंधर में, एंड सेंट्रल आर्क इज़ द बिल्डिंग. ये नई बिल्डिंग बनी है अमरदास चौक के पास. The range is very good. We have brought in starting from 60-70,000 small pieces which people can wear, and up to then we have bridal jewelry. सर बहुत बढ़िया लगा, यहाँ के लोग इतने वाइब्रेंट है और इतने सुंदर लग रहे हैं. आज त्यानी ज्वेलरी के स्टोर ओपनिंग में आए और सबने 4 चांद लगा दिए. ब्रांड के बारे में सर, ब्रांड एक ऐसा अनोखा ब्रांड है जो यूथ और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को साथ ले आता है, और आई थिंक मेरा स्टाइल भी उसी को ही बहुत ही कोऑर्डिनेट करता है. तो ये ब्रांड बहुत ही स्पेशल है, दिल के करीब है, और बहुत खुशी मिल रही है कि हर शहर में, इंडिया के हर शहर में यही स्टोर, यही ज्वेलरी की चर्चा हो रही है. और खुशी की बात है कि हम आज जलंधर आए हैं. इतना ब्यूटीफुल शहर है, इतना सुंदर शहर है, इतने सुंदर लोग हैं. ग्रेटफुल इज़ द ओनली वर्ड दैट कम्स टू माई माइंड, and I hope that people discover the beauty of Tyani, like the beauty of this people, and it's a great amalgamation around the globe. So, message is that the message is that I think people are really lovely here. There's no message that I could give. There's only more that I can learn from them. Be happy, be jolly like you are. I think they're all divas, they're all beautiful, they're young at heart, and that's what exactly Tyani is. So there's no message for you all, only gratefulness. राजधानी दिल्ली के डॉक्टर बिशंबर दास मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई. ये अपार्टमेंट संसद भवन से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ कई राज्यसभा सांसदों के फ्लैट हैं. दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दोपहर 1:20 पर मिली, जिसके तुरंत बाद 6 दमकल गाड़ियां मौके पर रवाना की गई. आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू होकर पहले और दूसरे फ्लोर तक पहुंच गई. तेज लपटों और धुएं के कारण आसपास के लोगों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया. दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास शुरू किए. घटनास्थल पर पुलिस बल और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए, जो राहत और बचाव कार्यों में जुट गए. इस दौरान अपार्टमेंट के बाहर भारी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और ट्रैफिक प्रभावित हुआ. फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. अमृतसर के हेरिटेज इलाके में भाइयों के ढाबे के पास एक अधूरी इमारत अचानक गिर गई. इस इमारत में कुछ मजदूर काम कर रहे थे. हादसे में एक मजदूर गांव लद्देवाल निवासी सरवन सिंह घायल हो गया. उनके पैर में मामूली चोट आई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. इस दुर्घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये जगह अमृतसर के दरबार साहिब से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जहां हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं. स्थानीय निवासी साहिब सिंह ने बताया कि इमारत पर लगातार काम चल रहा था, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इमारत को गिराने का काम चल रहा था, लेकिन गिरने से पहले कोई चेतावनी या रोकथाम नहीं दी गई. स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी और लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस दुर्घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं. अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला,
की रिपोर्ट। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਲੱਦੇਵਾਲ ਲੱਦੇਵਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਆ ਢਾਉਂਦਾ ਆ ਕੋਠੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਲਾਗੇ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਭਰਾ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਬੀਮ ਸੁੱਟਣ ਡਿਆ ਤੇ ਆ ਵਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਡੇਪਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਧਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ। ਸੱਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਸੱਟ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਭਰਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਚਲਾਓ ਯਾਰ ਆਏ ਮਾਲਕ ਆਏ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਢਾਉਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਬਚਾਅ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਘਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ। शिव मंदिर श्री विद्या बंगलामुखी धाम न्यू प्रेम नगर जालंधर में श्री 1008 साकेतवासी महंत श्री जयराम दास जी महाराज की पुण्यतिथि पर दिव्य संत सम्मेलन एवं भंडारे का आयोजन महंत हरि रामदास उर्फ संजय पंडित जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर महंत बंसीदास जी महाराज, महंत पवन कुमार दास महाराज, महंत मुरली दास महाराज, महंत राजकिशोर महाराज, महंत रामदास महाराज, महंत सुरेश दास महाराज, महंत राम नारायण दास महाराज जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर उपस्थित भक्तों को अपने प्रवचनों के माध्यम से निहाल किया, जबकि पूर्व CPS केडी भंडारी, पार्षद दीपक शारदा, पार्षद देवेंद्र रोनी, भाजपा नेता आशीष सहगल, रमन शर्मा, सुनील सहगल ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर धाम के संस्थापक एवं संचालक महंत हरि रामदास उर्फ संजय पंडित जी ने आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को विशेष रूप से सम्मानित किया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। और वैसे कहते भी है साधु की सरकार के साधु जो जगत के कल्याण के लिए बना हो उसे कहते हैं संत या संत। तो संत का जीवन एक समाज के लिए ही होता है, लेकिन समाज को भी संत को समझना चाहिए। मैं पूर्व में जो चर्चा आप लोगों के बीच कर रहा था धर्म के प्रति कट्टरता, धर्म के प्रति आस्था। कट्टरता शब्द का प्रयोग तो इस्लाम करता है, लेकिन हमारे यहाँ सनातन कट्टरता का प्रयोग नहीं करता, आस्था का प्रयोग करता है। लेकिन आस्था विश्वास है, आस्था निश्चय है, आस्था एक हमारी जिद है, आस्था ही हमारा एक जीवन है। इसलिए सनातन आस्था को स्वीकार करता है और इस्लाम कट्टरता को स्वीकार करता है। वो कट्टर है इसलिए कभी भी एक छोटा सा 5 साल का बच्चा भी प्रहार करेगा सनातनी के ऊपर, सनातनी अगर 100 साल का बूढ़ा भी होगा तो वो जल्दी से हथियार नहीं उठाता। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब समय ये है कि हम जगे। अगर नहीं जगे होते समय से कश्मीर वाले तो आज भगाए नहीं जाते और पूरे देश में उनकी दुर्दशा नहीं होती। ये बार बार संत जो आपको इशारा कर रहे हो क्यों? इसलिए कर रहे हैं कि अब जलंधर में भी घटना होने लगी है, और जलंधर में क्या होने लगी, तुम्हारे घर में होने लगी है। समझ लो हर व्यक्ति को सावधान होना होगा अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, तब ये संस्कृति बचेगी, ये सनातन बचेगा। अभी बीच में भंडारी साहब भी यहाँ इस आयोजन में आए हैं, पूर्व MLA। इनको भी साधुओं की तरफ से, संत समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद आने पर विजय चड्ढा जी आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सागर जी आए हुए हैं, सुनील सागर जी तो हमारे पूर्व से ही हैं, रमन शर्मा जी, और ये हलचल चैनल वाले भी आए हैं भाई, शीतल जी ने सबको भेजा, संदीप शर्मा पूरी उनकी टीम, शीतल जी की तरफ से ये बड़ा अच्छा उपहार है जलंधर वालों के लिए। अच्छा है संदेश इसी माध्यम से जाता तो है, कम से कम हर सनातनी के पास संदेश तो पहुंचेगा। उस व्यक्ति ने ऐसा कार्य तो किया कि सनातन जगे, और हम लोगों का एक माध्यम भी है साधुओं को। देखो अभी मैं बोल रहा था कि हमारी वेदना के 10 साल पूर्व से साधुओं ने पंजाब की चिंता की है। पंजाब में धर्मांतरण का जो विषय है ये बहुत गहरा विषय है। आज तो समय ही नहीं है इस पर चर्चा करने का, लेकिन हमने आपको पूर्व में भी इसलिए इशारा कर दिया है
भंडारी साहब के सामने एक बार एक लाइन आपको और समझा दूं। देखो ऐसा है, राजनीति अपनी जगह पर, लेकिन धर्म अपनी जगह पर, ये होना चाहिए। धर्म करने वाला एक धार्मिक व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति को संभाल सकता है, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति किसी धर्म को नहीं संभाल सकता। और राजनीति हो गई। उस दिन जो आयोजन था रामलीला चौक में, वहां राजनीति हो गई। पहले दिन हमने सबको समझाया, सबको बोला, सबको लेकर के गए। स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो भी हम गए, सभी गए। और दूसरे दिन यह नेता इकट्ठे होकर के पंचायत करके और उन्होंने फैसला दे दिया, तुम सबका बाप बने हो। जिन लोगों ने फैसला किया बिल्कुल गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे नहीं चाहिए 2 रुपया किसी राजनीतिक पार्टी से, न कभी मैं कभी लिया हूं, और इन बातों को ललकार करके मंच से बोलता हूं। मैंने किसी पार्टी के सामने आज तक हाथ नहीं फैलाया जलंधर में आने के बाद, और जीवन में कभी हनुमान जी करने भी नहीं देंगे। करोड़ों रुपए की आवश्यकता होती है, उसी दिन हनुमान जी देते हैं, तो करोड़ों रुपए एक साथ खर्च करता है। लेकिन धर्म के ऊपर आवाज आएगी तो यह साधु समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम उस बात को नहीं झेल सकते। प्राण गवा देंगे, लेकिन धर्म के ऊपर आवाज नहीं आने देंगे। और ये केवल संतों का ही उत्तरदायित्व नहीं है, संपूर्ण सनातनियों का उत्तरदायित्व है। अगर आप राजनीति में बढ़ते चले गए तो जो राजनीति लोग कर रहे हैं उनके घरों में भी दुर्दशा होगी, और वही दशा उनके साथ होगी जो उस दिन किसी दफ्तर के बाहर हुआ। समझता हूं, लेकिन चिंतन नहीं करता, चिंतन नहीं करते। और समय समय पर संतों ने चिंतन व्यक्त किया, और जो सनातनी वो चिंतन को समझ गया और जग गया, वह सनातनी बच गया। अगर सनातन को बचाना है तो संत को भी बचाना पड़ेगा। अगर सनातन आज जीवित है, अगर हम आप इस मंच पर बैठे हैं कि इतने संतों ने कुर्बानियां दिया, तब हम आज इस मंच पर, इस सभा में यहाँ पर बैठे हैं जलंधर में। अब पूर्व में सबको पता है, समय नहीं है, जहां जहां सनातन हिंदू कम हुए वहां रह नहीं पाया, वहां रह नहीं पाया। रूस से लेकर अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान से लेकर श्रीनगर की बात करें हमारा, तो अफगानिस्तान में हिंदू थे, और हिंदू शब्द कहां से आया? सिंध नदी के पास से। सिंध नदी में सबसे ज्यादा हिंदू वास करते थे, वहां कम हुए नहीं रह पाया। हम टांडा में अपना मंदिर है, हमारे मंदिर के आसपास लोग सारे अभी भी चिंतन करते हैं कि हम पाकिस्तान से आए, हमारा पाकिस्तान में जमीन था, हमारे पाकिस्तान में निजात था, प्रॉपर्टी था, लेकिन हम कुछ लेकर नहीं आ पाए, कुछ लेकर नहीं आ पाए। माताएं थोड़ा बहुत सोना उनके पास होगा, सोना लेकर भाग पाए, लेकिन जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब वही छोड़ दी। अभी मैं हरिद्वार में गया था, तो वहां पर एक ड्राइवर एक संत ने रखे, और एक सेठ जी आए हुए थे, उनका ड्राइवर था एक मुसलमान। तो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, और मैं सुन रहा था बैठकर दूर से। तो जो हिंदू ड्राइवर है बोलता है कि हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े एक एक बच्चे उनके हैं, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन तुम लोग 5-10 बच्चे पैदा कर देते हैं। उसका क्या जवाब था? बोलते कल ये जो बच्चे हैं ना संख्या में परिणत होंगे, और जब जो प्रॉपर्टी आप लोग बढ़ाओगे ना तो एक बच्चा तो संभाल नहीं पाएगा, वो तो कल तो वही संभालेंगे ना। कल वो जो प्रॉपर्टी हम बना रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में लोग संभाल लिए, अफगानिस्तान में संभाल लिए, वो यहाँ भी संभाल सकते हैं। क्योंकि आज से 20 साल पहले कोई मस्जिद नहीं थी, मैं टांडा में एक भी मस्जिद नहीं था, 2 मस्जिद बन गए। इतना मैं दर्द है कि पंजाब के इस तरीके का नाल डेमोग्राफी चेंज हो रही है, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके के नाल, प्लान तरीके के नाल जो सिस्टम चलता पाया है, इसके ऊपर आज बहुत ही गहन मंथन और चिंतन हो रहा है। और मैं बिल्कुल बंसीलाल महाराज जी के नाल बिल्कुल सहमत हूँ। अगर धर्म नहीं बचेगा तो साडा रहन का कोई हज नहीं होगा, साडी भक्ति बेकार है। सनातन शाश्वत है,
सनातन आजीवन चलने वाला है। लेकिन अज दुख की गल है कि कोई लोग सनातन नूं कोरोना कह रहे हैं, कोई लोग सनातन नूं कीड़ा कह रहे हैं, और असीं लोग बड़े आराम के नाल सुनते हैं। चंद वोटां की खातर असीं लोग अपनी भावना नूं मारते हैं। लेकिन ये विषय बहुत चिंता का विषय है। असीं किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, क्योंकि सनातन हमेशा देश का सत्कार करता है। सनातन एक जीवन की पद्धति है। लेकिन कुछ लोग जिहड़ी ये चीज़ों का भ्रम फैला रहे हैं, उन्हें रोकना भी साडी जिम्मेवारी बनती है। साडी जिम्मेवारी है, चाहे असीं किसी भी पार्टी में बिलोंग करते हैं, लेकिन पहला असीं सनातनी हैं, पहला असीं हिंदू हैं। ये साडा समाज नहीं बचेगा तो असीं कख देने लवांगे। असीं बहुत सहनशील हैं, असीं श्री राम के वंशज हैं। श्री राम ने कभी नहीं किया, रामायण आप सारी पढ़ लेंगे, उन्होंने हरेक धर्म का सत्कार किया। श्री राम ने मां शबरी के झूठे वेर खाते, एक संदेश दिता कि कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई मजहब नहीं। मां ने शबरी ने अपने पेट चक चक के लिखा केड़ा मिठा था ते केड़ा कौड़ा सी परे करता। फिर वीर लक्ष्मण ने थोड़ी प्रेम किया, लेकिन साडे श्री राम ने इस गल का प्रेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि सारे एक समान हाँ। ये साडा सनातन है कि जदों नदी पार करनी सी ते निषाद राज वो भी अनसुधी जाके दसी। उन्होंने एक मैसेज दिता, जो राज्य अभिषेक होना सी उन्होंने सारे नाल ले जाके बराबर सीटां ते बिठाया। ये सनातन है, ये साडा हिंदू धर्म है। लेकिन अज लोग कुछ लोग जिहड़े साडे धर्म नूं परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कदापि नहीं होएगा। सारे महाराज जी तुहाडे आशीर्वाद नाल पूरा जो तुहाडा हुक्म होएगा संत समाज का, असीं ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ इन बिन चल के धर्म की सेवा करांगे। धर्म बचेगा तो राजनीति बचेगी, जो धर्म ही नहीं बचेगा तो राजनीति काहदी करनी है। इस करके इस तरह के समागम होने चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा संजय जी को, साडियां जिनको मावां बैठियां, मैं साडियां बच्चियां बैठियां, मैं साडी नौजवान पीढ़ी बैठी है, सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी ताला मंदिर परिसर में हरियाणा से आई 60 छात्राओं ने पहुंचकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान छात्राओं ने महामाई के समक्ष माथा टेकने के बाद सरोवर तटवासिनी मां त्रिपुर मालिनी जी के दरबार में भी हाजिरी लगाई। सभी छात्राओं ने मां के समक्ष नतमस्तक होकर अपने पारिवारिक सुख की मंगल कामना की। इस अवसर पर मंदिर के पंडितों ने सभी छात्राओं को मां की चुनरी भेंट कर विशेष रूप से सम्मानित किया। छात्राओं ने बताया कि उन्हें सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी ताला मंदिर में आकर असीम शांति का अनुभव हुआ है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा। हम आज हरियाणा से आए हैं। यहाँ पर हम अब चंडी मंदिर में आए हैं। हम मोटिव लेकर आए हैं एक कि हमें शहीदों के नाम पर दिवाली मनानी है हमारे भारतीय सैनिकों के साथ। ये हमारे सर हैं जो एसोसिएशन के मेंबर हैं, मीडिया स्टेशन के धरेंद्र सर। हम सभी लड़कियाँ आई हैं, 50 लड़कियाँ मिलकर आई हैं और सबने आज हम जलंधर आए। उससे पहले वहाँ गए थे, गवर्नर हाउस में गए थे, वहाँ मीटिंग हुई, अच्छे से नाश्ता किया, सर ने सम्मानित किया, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हम भारतीय सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं, यही हमारा मेन मोटिव है। मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का
आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान मयंक कपूर से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। तो वही सिद्धमा बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित प्रभु भक्तों पर प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए कहा कि दुनिया में हर तरफ आनंद का प्रवाह है, लेकिन फिर भी इंसान उदास और दुखी है। ये आनंद का स्रोत कोई और नहीं बल्कि परमात्मा या आत्मिक शांति है, जो हमारे भीतर और चारों ओर मौजूद है, लेकिन मनुष्य उसे बाहरी दुनिया में ढूंढता रहता है, जिससे वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे अंदर अनंत खुशी का भंडार है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, समीर कपूर, विक्की अग्रवाल, अमरिंद्र कुमार शर्मा, प्रदीप, दिनेश सेठ, सौरभ भाटिया सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सर्वप्रथम मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक संजीव शर्मा ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश किया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कैशियर पविंदर बहल, अरुण वर्मा, रमन शर्मा, मनीष शर्मा, राजू शर्मा, पवन मेहता, सुनील अरोड़ा, भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। दुख दर्द मुसीबत तेरे ही हर आरती, माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती, वो चाहे तो राई के दाने को भी पर्वत के समान बना दे, मगर माँ ना चाहे तो पर्वत भी एक राई का दाना बन सकता है। दुख हरनी दुख दर्द मुसीबत तेरे ही हर आरती, दिगावली होए तेरी नाम पत्थर भी करते, नाम पत्थर भी करते, नाम पत्थर भी करते। हो वन देख जाना, वन देख जाना, मेहर का हुनर, वन देख जाना, मेहर का हुनर, द्वार दया ना खोल मानी मूर्तिए हंस के मेरे नल बोल, 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 मूर्तिए हंस के मेरे नल बोल। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। मानसा जिला के कस्बा झुनीर में पीआरटीसी की बस ने स्कूटी सवार 2 सगी बहनों को कुचला, मौके पर हुई मौत। अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ ट्रेन में पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर लगी भीषण आग, 125 यात्रियों को सुरक्षित निकाला बाहर। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू इलाके में पुलिस और लुटेरे में हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी हुआ घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।